دو ماہ کے بجلی بل ادا نہ کرنے والے صارفین ہو جائیں ہوشیار۔ مالی سال کے آخری ماہ میں فیسکو نے صارفین سے کوئی رعایت نہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بجلی کے دو ماہ کے بل ادا نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشنز منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ فیسکو میں اس وقت 70,000 سے زائد صارفین کے نام ERO لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ بلوں کی عدم ادائیگیوں کی صورت میں کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے۔ دوسری جانب فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، کہیں ابر رحمت برسا تو کہیں کالے بادلوں نے بسیرا ڈالا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد شہر میں آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شہری کہتے ہیں گرمی سے ابر رحمت برسنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ جھنگ، گوجرا اور کمالیہ میں بھی آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار۔ جھنگ شہر میں کالے بادلوں کا راج، اندھیرا چھا گیا۔ کمالیہ میں ابر رحمت برسا تو درختوں اور پودوں پر جمی ہوئی مٹی اور دھول بھی دھل کر صاف ہو گئی۔ ٹوبہ اور چنیوٹ میں بھی تیز آندھی چلی۔ گزشتہ 2 روز سے پڑنے والی گرمی سے چھٹکارا حاصل ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے رات میں دونوں شہروں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کر دی۔ فیصل آباد میں تیز ہواؤں کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس ہو گیا۔ آندھی سے فیسکو ریجن 100 سے زائد فیڈرز پر بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ اسلامیہ پارک، گلستان کالونی، پیپلز کالونی، محمود آباد، مسلم ٹاؤن، طارق آباد، غلام محمد آباد، احمد ٹاؤن، نشاط آباد اور جھنگ روڈ کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی، جس سے شہری شدید اذیت سے دوچار رہے۔ چنیوٹ میں بھی تیز ہواؤں سے فیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ شہر کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی کچہری روڈ خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ روڈ پر پڑنے والے گڑھے ٹریفک مسائل میں اضافہ کرنے لگے۔ سرکاری دفاتر بھی اسی روڈ پر قائم، مگر روڈ کی تعمیر و مرمت گزشتہ کئی سالوں سے نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقدیر کلیار کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کرنے میں غیر سنجیدہ۔ کچہری روڈ پر پڑنے والے گڑھے خوف کی علامت بن گئے۔ مختلف جگہوں پر پڑے گڑھے راہگیروں کے لیے مسائل کا سبب بننے لگے۔ کچہری روڈ پر گرلز ڈگری کالج، محکمہ تعلیم کا دفتر، محکمہ صحت، سول ڈیفنس سمیت ججز کی رہائش گاہیں اور واٹر مینجمنٹ کا دفتر ہونے کے باوجود روڈ کا پیچ ورک نہ ہو سکا۔ بڑی شاہراہوں سمیت کچہری روڈ کی حالتزار ابتر ہونے پر شہری انتظامیہ سے نالاں نظر آتے ہیں۔ بہت عرصے سے یہ روڈ جو ہے استر دراز سے سکھا رہا ہے، جو بہت زیادہ گڈھے ہیں ادھر۔ اس روڈ پہ سرکاری ہاسپٹل اور سرکاری دفاتر بھی ہیں، ہسپتال، کالج بھی ہیں۔ ادھر جلد سے جلد اس روڈ کی تعمیر کروائی جائے۔ شہریوں نے حکومت سے تمام بڑی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں فیلڈ آفیسز کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پیدائش اموات کے سرٹیفکیٹس کے اجراء میں تاخیر سے شہری پریشان۔ نظام کو مکمل فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فیلڈ آفیسز کے بڑھتے مسائل کم نہ ہو سکے۔ 157 UCs ختم کرنے سے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ 41 فیلڈ آفیسز مسائل کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مسائل حل کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہے۔ تعداد بڑھانے سے مسائل حل ہوں گے۔ UC چیئرمین میاں طاہر ایوب نے ملازمین کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ماضی میں ہوائی اڈوں کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے انتخابی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں، جبکہ سودی نظام نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت کی اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی نے 3 روزہ دورے کا آخری دن بھی مصروفیت میں گزارا۔ میڈیا سے گفتگو میں سراج الحق کا کہنا تھا، حکومت مہنگائی کا سونامی اپنے ساتھ لائی ہے۔ گزشتہ 3 سال سے ملک میں آٹا، چینی، گھی، ادویات، رنگ روڈ سمیت ہر سکینڈل کے پیچھے حکومتی لوگ ہیں، مگر کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ پرانی مستری ہے اور نیا پاکستان ہے، اور اس بجٹ میں جو اعلانات کیے گئے تھے، ہمیں افسوس ہے کہ ابھی بجٹ پاس بھی نہیں ہوا ہے اور حکومت نے یو ٹرن لینا شروع کیا، اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور جب پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو تو پھر ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں مسلسل عوام کو دھوکہ دیا ہے اور کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔
जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्दा इत्तेहाद उम्मत उलमा कन्वेंशन से खिताब में सिराजुल हक का कहना था आइंदा माली साल का बजट 8400 अरब रुपए का है, जिसमें से 3000 अरब सूद की अदायगियों पर खर्च हो जाएंगे तो आवाम के लिए क्या बचेगा। 3.4 ट्रिलियन रकम सूद के अदायगी के लिए रखे गए हैं। तो जब 8 ट्रिलियन में से 3 ट्रिलियन सूद में चला जाएगा, बाकी बजट कहां का रह जाएगा। सूदी निजाम की वजह से इस वक्त 4.3 ट्रिलियन कर्जा है पाकिस्तान पर, 43,000 अरब कर्जा है पाकिस्तान पर। सिराजुल हक का मजीद कहना था मुसलमानों को तकसीम करके निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में किसानों की जानिब से किसान कार्ड पर कड़ी तनकीद। किसान रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को बराह रास्त रिलीफ मुहैया करना चाहिए। कार्ड से कोई रिलीफ नहीं मुहैया होगा। ऐसे इक़दामात से ज़राअत मुतासिर होगी। सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान मियां रेहानुल हक का कहना है कि महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से ऐसे इकदामात नहीं किए जा रहे जिससे किसानों को आगाही मिल सके। एक पेचीदा तरीकाकार है जिसकी वजह से किसान इस ऑफर से इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रहे। किसान कार्ड जैसे हुकूमत ने ऐलान किया है या हुकूमत किसान कार्ड बना रही है, ये घर घर जाके या हर गाँव में जाके ये किसान कार्ड की इन्होंने मुहिम शुरू की है, तो ये वैसे तो जैसे हुकूमत समझती है कि ये बहुत सहल और आसान काम है, मगर जब हम किसान की तरफ देखते हैं, अनपढ़ किसान की तरफ देखते हैं, ऐसे किसान की तरफ देखते हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल नहायत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर किसान कम्युनिटी जो है ये अनपढ़ तबके से तल्लक रखती है। इस कार्ड को कैश करवाना, फिर इस पे फैसिलिटी हासिल करना, फिर इस पे सब्सिडी हासिल करना, उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ज़राअत सेक्टर को तरक्की देना चाहती है तो बराह रास्त सब्सिडी से ही ऐसे इक़दामात किए जा सकते हैं जिनसे कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। कोयटा चमन के बाद पीर महल में भी विटामिन कैल्शियम से भरपूर अंगूर के बड़े पैमाने पर काश्त। ज़मींदार कहते हैं कि मज़ेदार होने के साथ फल खूब आमदन देने वाला है। रोज़ाना एक खेत से कितने मन अंगूर उतरता है, कौन कौन सी इक़साम काश्त की गई हैं, तफसीलात जानेंगे नईर शराजी की इस रिपोर्ट में। अंगूर को बेरीज के खानदान का हिस्सा और सेहत के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है। इसका सिरका मोटापे समेत पेट के मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी है। पीर महल के बागात में लगे मुख्तलिफ इक़साम के अंगूर जहाँ ज़ायके में मुनफरिद हैं, वहीं इनकी फसल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेरा रोजाना तकरीबन 12 तो 14 मन अंगूर रोजाना उतर रहा और ਇੱਥੇ ही विक रहा वा। और ਜਿਹੜੀ मेरे को किस्म आ वो हैगी सुल्तानिया सी आ, ब्लैक नारक आ, कैंगरूबी आ, वाइट परलट आ, लेकिन ज़्यादा मेरे को काश्त है कि कैंगरूबी और सुल्तानिया सी दी। ये सुंदर खानी नालों भी अच्छा वा, तुर्की दा अंगूर आ। पीर महल के काश्तकारों का कहना है कि हमारे पास सुल्तानिया सी, ब्लैक नार्क, फ्लैम सीडलेस, कैंडीलैंड और किंग रूबी है जो धूप के साथ रंग बदलता है और पकता है। खाने में भी ये बहुत मीठा, जबकि ब्लैक नार्क जैम के लिए बहुत अच्छा है। मकामी सतह पर काश्त की वजह से इसकी कीमत निहायत ही मुनासिब है। लोकल मार्केट वाले खुद ही यहाँ से आकर ले जाते हैं। लोकली लोग बहुत ले जाते हैं गिफ्ट भेजने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और दूसरा लोकली मार्केट में भी बिकता है। प्राइस बड़ी रीजनेबल है और तवानाई से भरपूर है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। माहिरीन कहते हैं अंगूर कैंसर से बचाव, आंखों के मसाइल और मुतअद्दिद बीमारियों से निपटने के लिए मुफीद है। क्वेटा चमन के अंगूरों को आप भूल ही जाएं कि क्वेटा चमन के अंगूर भी मजेदार थे, लेकिन आप पीर महल के अंगूर जो हैं वो भी किसी से कम नहीं। और मुख्तलिफ इकसाम की यहाँ पर 6 से 7 किस्में जो काश्त की जा रही हैं, जहाँ यह मुनाफा बख्श कारोबार भी साबित हो रहा है, वहीं पर जो है मकामी मंडियों में भी इसको खूब पजीराई मिल रही है। कैमरा टीम मोहम्मद आशिर के हमरा, नैयर शराजी, पीर महल। फैसलाबाद डिवीजन से पाक अफवाज में जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। GHQ ने कैडेट कॉलेज फैसलाबाद की मंजूरी दे दी। ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद को जड़ावाला रोड पर कैडेट कॉलेज बनाने के लिए NOC जारी कर दिया गया। पाक अफवाज में जाने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन को अब फैसलाबाद में ही कैडेट कॉलेज की सहूलत मुयस्सर आएगी। पाक आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर ने ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद की दरख्वास्त पर कैडेट कॉलेज फैसलाबाद के क़याम के लिए NOC जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जड़ावाला रोड पर कैडेट कॉलेज बनेगा। जुलाई में तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। पाक अफवाज एजुकेशन विंग की खुसूसी टीम भी विजिट करेगी। कैडेट कॉलेज फैसलाबाद में 7वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को तालीम के साथ साथ पाक अफवाज में शिरकत के लिए तैयार भी किया जाएगा।
ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद मिलिट्री कॉलेज, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी समेत फोर्सेस के मुख्तलिफ इदारों में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उनका ताल्लुक चक 65 फैसलाबाद से है। फैसलाबाद के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, कहीं ट्रैफिक सिग्नल नाकारा तो कहीं सिरे से ही मौजूद नहीं। ट्रैफिक वार्डन्स की गैर मौजूदगी से मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम भी मुतासिर होने लगा है। फैसलाबाद के कई चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा हो गए हैं। चौक में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक वार्डन भी गायब रहते हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक बेहंगम दिखाई देने लगी है। अक्सर ट्रैफिक सिग्नल बिजली की बंदिश के वक्त मुतबादिल निज़ाम न होने पर भी बंद रहते हैं। ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसाइल तो यह है कि जब लाइट चली जाती है तो इशारे बंद हो जाते हैं। ना जामिया चिश्तिया चौक में इशारा है, ना उधर से पता लगता कि कहाँ जाना है, किधर से किधर जाना है। और हलालिया में चौक में भी कोई इशारा नहीं है और वार्डन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होती मौजूद और ना कोई रोकने वाला है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरा है। सरगोदा रोड और मिल्लत रोड पर मुश्तरका बने जामिया चिश्तिया चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद तो हैं, मगर चलते और ना ही ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद फराहम करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल्स कम और कबाड़ की दुकान पर लटकते पुराने लोहे के मनाजर ज्यादा पेश करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के ये मसाइल हैं कि जो मेन चौक है उधर इशारे वगैरह नहीं लगे हुए, वार्डन वाले साइड पे बैठे होते हैं, अवाम इशारे तोड़ रही है, किसी को कुचल के चले जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कानून नाफिज करने वाले अदारे सो रहे हैं। ट्रैफिक हुकाम कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल लगाना और फाल रखना ट्रैफिक पुलिस का नहीं बल्कि टाउन म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। ट्रैफिक पुलिस तो लगे सिग्नल पर खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखती है। कहीं बिजली की बंदिश के बायस बंद इशारे तो कहीं सिरे से ट्रैफिक सिग्नल मौजूद ही नहीं। फैसलाबाद में ट्रैफिक सिग्नल ना होने से इंतहाई बेहंगम होती जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है कि सब अच्छा है की बात करती है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। आपको बताएं कि ग्राउंड आबाद हों तो हस्पताल वीरान पड़ जाते हैं, मगर चिन्योट के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम। ग्राउंड की सहूलत ना होने पर नौजवान खिलाड़ी ताफुनज़दा माहौल में खेलने लगे। धूल मिट्टी और जगह जगह लगे कचरे के ढेरों पर नौजवान खेलने पर मजबूर हैं। जिला चिन्योट हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर। चिन्योट के शहरी खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं। सरकारी ग्राउंड न होने से नौजवान खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं। धूल मट्टी और लगे कचरे के ढेरों पर खेलने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। नौजवानों का कहना था कि ग्राउंड्स के लिए हुकूमत ने वादे किए जो ताहाल वफा न हो सके। खेल सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। 2009 में चिन्योट को जिले का दर्जा मिला, उस दिन लेकर अब तक 2021 आ चुका है, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। अगर कोई ग्राउंड है तो उधर कब्जा माफिया है, उन्होंने अपने हर चीज ऊपर बिछाई हुई ग्राउंडों पर। बच्चे कहाँ जाएं खेलने के लिए, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। नौजवानों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और मुतलका अफसरान से मुतालबा किया कि सरकारी सतह पर खेलों के लिए ग्राउंड की सहूलियात फराहम की जाए। आपको बताएं कि फैसलाबाद के रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार, ताजिर बिरादरी परेशान। कहते हैं कि दुकानदार अपना सामान दुकानों के बाहर रखते हैं, रिक्शे भी रोड पर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। रेलवे रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार होती है, जहाँ तजावुज़ात की भरमार है। सड़क किनारे रिक्शे भी खड़े रहते हैं। तजावुज़ात की वजह से ताजर भी परेशान दिखाई देते हैं। ताजर कहते हैं कि रोड पर रिक्शे खड़े होने और दुकानदारों के सामान बाहर रखने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। ग्राहकों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग अपना सामान दुकानों की बजाय बाहर रख रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का क्योंकि फ्लो पहले बहुत ज़्यादा है, तो उसके अलावा चिंची रिक्शे वाले जहां इनका दिल करता है वो रोक लेते हैं। उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। रेलवे रोड के ताजरों ने मुतालबा किया है कि कारपोरेशन हुकाम रेलवे रोड पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन करें। ट्रैफिक पुलिस रक्षों के बीच सड़क खड़े होने को रोके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि चिन्योट के सैटेलाइट टाउन में मौजूद अल्लामा इकबाल पार्क मलबे का ढेर बन गया। पार्क के चारों तरफ पड़े मलबे और कचरे के ढेर म्यूनिसिपल इंतजामिया की राह तक रहे हैं, जबकि पार्क में जानवर सरेआम फिरने लगे हैं। सैटेलाइट टाउन चिन्योट का अल्लामा इकबाल पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस खस्ताली का शिकार हो गया। पार्क में लगाए गए घास की कई माह बाद भी कटाई न हो सकी, जबकि चारों तरफ बड़े मलबे और कचरे के ढेर इंतजामिया की राह तकने लगे। पार्क में सहूलियात का फुकदान होने पर शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। शहरी सैर तफरीह के गर्ज से पार्क का रुख करते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल अफसरान ताहाल पार्क की इंतजार को बेहतर न बना सके। शाम के टाइम तो ये बिल्कुल जो है ना, ये एक चरागा का मंजर पेश कर रहा होता है पार्क। बारहा एप्लीकेशंस
اور دینے کے بعد بھی جو ہے اس پارک کی طرف انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے اور تعفن پھیل رہا ہے، گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے یہ پارک۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے مطالبہ کیا کہ پارک کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ سیر و تفریح کی غرض سے آنے والے شہریوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں کہ شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا معاملہ SHO نشاط آباد سمیت 6 افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ رائے فاروق احمد نے بطور SHO نشاط آباد شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھا۔ اس معاملے میں ASI مختار احمد، اہلکار امجد علی، عمر حیات، ندیم اور لیاقت بھی غیر قانونی حراست میں شامل رہے، جبکہ متاثرین کی درخواست پر SPAIB نے انکوائری میں غیر قانونی حراست کا الزام درست قرار دیا، جس پر AIG انکوائریز نے SHO اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ قانونی اور محکمانہ کارروائی کر کے 15 دن میں رپورٹ کی جائے۔ رائے فاروق احمد اس وقت بطور SHO سٹی سمندری تعینات ہیں۔ دوسری جانب شناختی کارڈ کے بغیر نمبر کے اور ملزم کے وارنٹ گرفتاری، اشتہاری اور جائیداد قرقی کی درخواست سے عدالت میں گزارنے پر پابندی عائد ہے۔ CPO نے تحریری احکامات جاری کر دیے۔ شناختی کارڈ نمبر کے بغیر ملزم کے وارنٹ گرفتاری لینے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ملزم کا اشتہار اور جائیداد قرقی کی درخواست بھی شناختی کارڈ کے بغیر دائر نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے CPO کا کہنا تھا کہ FIR سے قبل استغاثہ میں ملزم کا شناختی کارڈ نمبر درج اور آن لائن سسٹم میں ملزم کا شناختی کارڈ نمبر لازمی اپڈیٹ کیا جائے، جبکہ شناختی کارڈ نمبر نہ ہونے پر ملزم کی فیملی ہسٹری سے نمبر لیا جائے۔ شناختی کارڈ نمبر حاصل نہ کرنے والے تفتیشی افسران سے باز پرس کی جائے۔ فیصل آباد میں نئے DO سیکنڈری ایجوکیشن محمد طاہر صدیقی کے اعزاز میں تقریب، پاس پنجاب اور دیگر اساتذہ تنظیموں نے ویلکم پارٹی منعقد کی۔ CEO علی احمد سیان، DO ایلیمنٹری ارشاد روہیل کی بھی شرکت۔ صدر پاس پاکستان میاں محمد سعید، پرنسپل راؤ محمد اقبال، حاجی محمد اختر اور دیگر اسکول سربراہان نے نئے DO کی بھرپور انداز میں تقریب میں شرکت کی۔ فیصل آباد میں نئے تعینات ہونے والے DO سیکنڈری ایجوکیشن محمد طاہر صدیقی نے چارج سنبھال لیا۔ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے پاس پنجاب اور دیگر اساتذہ تنظیموں نے ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان اور DO ایلیمنٹری ارشاد روہیل بھی شریک ہوئے۔ صدر پاس پنجاب میاں محمد سعید، پرنسپلز راؤ محمد اقبال، سرمد گجر، محمد ندیم، مجاہد علی، ڈاکٹر عبدالحفیظ، حافظ اظہر رفیق، ڈائریکٹر ایلیمنٹری مہر اشرف حرل، حاجی محمد اختر، نازیہ ظفر، رخسانہ اسماعیل، قمر سلطانہ، رخسانہ اکبر، طاہرہ سمیت اسکول سربراہان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور طاہر صدیقی کو مبارکباد دی، جبکہ انتظامی اور تدریسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ تقریب میں ڈپٹی DOs رانا افتخار، افضل کموکا، عرفان باجوہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سردار ساجد، عبدالغفار بھی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس، ویسٹ پنجاب کے صدر MNA فیض اللہ کموکا کی شرکت، ورکرز کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ PTI ویسٹ پنجاب کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنرل سیکریٹری رائے مرتضی اقبال، ڈپٹی سیکریٹری جاوید نیاز منج، سینئر نائب صدر ڈاکٹر حسن مسعود، انفارمیشن سیکریٹری شہباز کسانہ، نائب صدر یاسر بلوچ، ایڈیشنل سیکریٹری جاوید اشرف، فائنانس سیکریٹری حماد نیازی اور طارق فرید بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کا اہتمام شہباز کسانہ کی طرف سے کیا گیا۔ اس موقع پر فیض اللہ کموکا کا کہنا تھا کہ PTI کبھی اپنے ورکرز کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ان کے مسائل کو جلد حل کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کسان بے موسمی سبزیاں اگا کر زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ گرین فارمز فیصل آباد میں ٹنل فارمنگ پر تربیتی ورکشاپ، کاشتکاروں کو گرمیوں میں کھیرے اور کریلے کی پیداوار حاصل کرنے سے متعلق آگاہی دی گئی، جبکہ ماڈل کھیتوں کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ گرین فارم فیصل آباد میں ٹنل فارمنگ کے متعلق تربیتی ورکشاپ میں کسانوں نے شرکت کی۔ چیئرمین ریسرچ بورڈ ساجد سندھو کا کہنا تھا کہ کاشتکاری کے جدید رجحانات کو فروغ دینے سے پیداوار میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دن میں ہم نے پورے پنجاب سے جو اچھے اور ذمہ دار قسم کے فارمرز تھے
जो एडवांस फार्मर्स थे उनको यहाँ पे दावत दी कि वो आके देखें। फैसलाबाद में हमने एक कामयाब तजर्बा करते हुए यहाँ पे बेहतरीन किस्म की पैदावार हासिल की, टमाटर की, यहाँ पे खीरे की, यहाँ पे करेले की, और ये कम रकबे से इनडिटर्मिनेट फैशन से प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के ज़रिए हमने टनल फार्मिंग की और इसकी पैदावार आम फार्मिंग की निस्बत जो है, आम पैदावार की निस्बत जो है ये 3 से 4 गुना नॉर्मल होती है और बाज़ सूरतों में ये 6 से 7 गुना तक भी चली जाती है। तरबीती वर्कशॉप में चेयरमैन रिसर्च बोर्ड और दीगर ज़राई माहिरीन ने किसानों को गर्मियों में खीरे और करेले की ज़्यादा पैदावार हासिल करने से मुतल्लिक आगाही दी। फसल नूं अच्छा रखने वास्ते फसल नूं जो कुछ इन्होंने ये कीता वा ये जदीद आ। इस तो भी अगे हुण ते दुनिया तो इस तो अगे चले गई है, लेकिन साढ़े जिमीदार अजे ये ते नहीं आया। ਜਦੋਂ कि जिमीदार ये ते आएगा उस उन्होंने ज़्यादा फायदा होएगा। हुण आर्गैनिक के उत्ते भी दुनिया आ रही है, आर्गैनिक का अगे पहले समझाना पैंदा सी, हुण माशाअल्लाह उहदे ते काफ़ी काम हो रहा। और असी इंशाअल्लाह ताला इस तो ये भी दसांगे, जिमीदारां नूं दसांगे कि करेले के उत्तों की फ़ायदा उठाया जा सकता, क्या करेला जो मंदा हो जाए जिमीदार उदों उन्होंने किद्दां सांभ सकदा। शुरा को टनल फार्मिंग के तहत लगाई गई फसल का विजिट भी करवाया गया। साजिद सिंधु का कहना था कि किसान बेमौसमी सब्जियां उगाकर ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस मौका पर एग्रीकल्चर टूरिज्म कारपोरेशन के तारिक तनवीर, ज़राई माहिर डॉक्टर शहजाद बसरा और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग की आमद, डीआईजी सईदुल्लाह गोंदल, मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज समेत तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स भी मौजूद। आईजी जेल ने जेल के जवानों के लिए मेस का इफ्तिताह कर दिया, जबकि रीजन भर की जेलों के मुलाजमीन के लिए बड़े खाने का भी एहतमाम हुआ। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में हुआ तमाम जेल अफसरान और मुलाजमीन के लिए बड़े खाने का एहतमाम, तो मेहमान खसूसी भी बड़े। आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग बतौर मेहमान खसूसी तशरीफ लाए तो जेल मुलाजमीन के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने नौजवानों के लिए शानदार मेस का इफ्तिताह किया और वहाँ मौजूद दीगर अफसरान के साथ गेम्स भी खेली। जेल चौधरी असगर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा असफ अजीम, एडिशनल सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मियां उमर, सुप्रीडेंट बोस्टल जेल आफ्ताब भी मौजूद थे। तकरीब में आईजी जेल और डीआईजी सईदुल्लाह गोंदल ने तमाम मुलाजमीन से खिताब भी किया। मुख्तलिफ से टॉपिक पे मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि तमाम टॉपिक्स का अहाता किया जाए। जब मैं अंडर ट्रेनिंग था तो उस वक्त मैंने मसाइल देखे थे, 2 मसाइल कि एक तो वार्डर गार्ड को छुट्टी नहीं मिलती और दूसरा पढ़ने लिखने के मौके नहीं मिलते। कि कोरोना की वजह से हमारी आपस में मिलने की और इस तरह खाने की जो दावतें थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदौलत हमारी जो कोरोना से काफ़ी हद तक जो है वो हालात बेहतर हुए। तकरीब में आने वाले मेहमानों के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिससे सब लुत्फानंदोज हुए। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में जेल अफसरान और मुलाजमीन इस गेट टुगेदर से खूब महजूज हुए। ताहम उनकी जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया कि आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए। कैमरामैन राशिद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में सीनियर सहाफ़ी आतिफ सईद की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद। मरकजी नायब सदर पीटीआई चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क की सलामती और कोरोना से निजात की दुआ की गई। सीनियर सहाफ़ी आतिफ सईद की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें पीटीआई रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, एडीसीआर मुदस्सर बुखारी, साबका चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चौधरी गुलाम नबी गुज्जर, साबका सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल, सदर मरकजी अंजुमन ताजना हाजी आमिर हनीफ, चेयरमैन प्रेस क्लब राना मोहम्मद खान, चौधरी मोहम्मद सलीम नंबरदार और सीनियर सहाफ़ी राना खालिद महमूद समेत दीगर दोस्त अहबाब और अजीज़ क़ारिब ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी इशफाक का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से हमारी तमाम मसरूफियात खत्म हो चुकी थी। सहाफ़ी और सियासी शख्सियात का आपस में चोली दामन का साथ है। सहाफ़ी और सियासतदानों का आपस में चोली दामन का साथ है। आज हमारे भाई ने ये इस्तेमाल किया है, दोस्तों के लिए यहाँ इकट्ठ हुआ है, महफिल हुई है, तो इसमें शिरकत मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला हमारे आतिफ सईद साहब को लंबी ज़िंदगी दे। कारी मोहम्मद अहमद फैज गौलड़वी, साहबजादा मौलाना मोनम हसनैन सदीकी और मुफ्ती नुमान शाह की जानिब से मुल्क की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन जवाहर मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह।